Good morning, children. In previous class we discussed about uses of air. Now in today's class we will discuss about hot and cold air. The movement of air is affected by the sun's heat. Land becomes hot due to the heat of the sun. Hot air is lighter than cold air, so it rises up, and cold air from the surroundings move in to take its place. Such a movement of hot and cold air makes the wind blow. Moving air is called wind. Fast and strong wind is called a storm. Movement of air is affected by the heat of the sun. Due to sun's heat, land warm up. Okay. Then the hot air present in the land rises up because it is lighter than the cold air. So it rises up, and cold air from the surroundings takes the place of hot air. Okay. Such a movement of hot and cold air makes the wind to blow. So moving air is called wind. Fast and strong wind is called a storm. Okay, children. एयर का मूवमेंट मतलब एयर का चलना हीट ऑफ द सन के द्वारा अफेक्ट होता है. मतलब सूर्य की गर्मी से एयर का चलना अफेक्ट होता है. मतलब कैसे एयर चलती है वो सूर्य की गर्मी पे डिपेंड करता है. लैंड जो ज़मीन होती है वो सूर्य की गर्मी से बहुत जल्दी हीट हो जाती है, तो उस जगह की जो एयर है वो हॉट हो जाती है. ठीक है. तो हॉट एयर चूंकि कोल्ड एयर से ठंडी होती है, इसलिए हॉट एयर ऊपर उठने लगती है. ठीक है. लैंड है, लैंड से बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, because of the heat of the sun, air gets heated. Okay. So from land, hot air rises up. Okay. Now from the surroundings, if it is lake or sea, then the cold air takes the place of hot air. Cold air comes down. Okay. Hot air rises up and cold air takes the place of hot air. This movement of air is called wind. Okay. When the wind is very strong, then it is called storm. इस तरह से हॉट और कोल्ड एयर विंड के बहने के लिए उत्तरदायी होती है. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सी एंड लैंड ब्रीजेस. Sea and land breezes. Water and land do not absorb or lose the same amount of heat in the same period of time. This difference gives rise to land breeze at night and sea breeze during the day. Water and land do not absorb the same amount of heat at the same time. So this difference gives rise to sea breeze during the day and land breeze at night. पानी और जमीन दोनों एक तरीके से सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. एक ही टाइम पे एक तरीके से सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. कभी कभी वे ज़मीन में सूर्य की गर्मी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, कभी कभी पानी में सूर्य की गर्मी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, जिसके बारे में आप सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो यही डिफरेंस, यही अंतर जो है वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को जन्म देता है. अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है सी ब्रीज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सी ब्रीज. ओके. अब देखिए सी ब्रीज क्या है. आपने ये समझ लिया ना. देखिए जमीन और समुद्र सूर्य की गर्मी को अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सोखते हैं. ठीक है. इसीलिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का इफेक्ट आता है. अब देखिए सी ब्रीज क्या है. ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर देन द सी वाटर. द एयर अबव द लैंड ऑल्सो गेट हीटेड अप. Since hot air is lighter, the air above the land rises
cool air above the sea blows towards the land to fill up the empty space. Such wind blows from the sea, thus wind blows from the sea to the land. It is called sea breeze. What is sea breeze? Wind blowing from the sea to the land is called sea breeze. Okay? During the daytime, what happens? दिन के समय में क्या होता है? जो लैंड है और suppose this is sea. Okay? The air which is this in this side means the air which is towards land that gets heated up. ये क्या होता है? Heat up हो जाता है. Gets heated up and the warm air rises. Okay? क्या होता है? हीट हो जाता है और वार्म एयर ऊपर जाता है और फिर जब ऊपर होके क्या होता है? मैंने आपको बताया था क्लाउड बन जाता है. ठीक है, क्लाउड बन जाता है. फिर क्लाउड प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से यह एयर, हाई प्रेशर की वजह से यह एयर ऊपर जाके क्लाउड बन गई, ठंडी हो गई. फिर वो प्रेशर की वजह से वापस नीचे आती है. ये वार्म एयर है. ठीक है, सॉरी, दिस इज वार्म एयर. नाउ दिस कोल्ड एयर comes down. Okay, now this is the cold air. Warm air rises up and the cold air from the sea breeze, this cold air blows towards land. This is cold air. Okay, अब देखो क्या होता है. वार्म एयर लैंड से ऊपर उठ गया, ऊपर उठ के तो ये क्लाउड बन गया, वो हो गया. फिर ऊपर में जो प्रेशर की वजह से जो कोल्ड एयर है ये नीचे आ जाती है सी में. ठीक है, ये साइकिल चलती रहती है. तो इस तरह से when the wind blows from the sea to the land, it is called sea breeze. फिर क्या होता है? इसकी वजह से कोल्ड एयर लैंड की तरफ बहने लगती है. इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज. ओके, now next is land breeze. During the night the land cools much faster than the sea water, so the air above the sea is warmer than the air above the land. The warm air being light rises up and the cool air from the land blows towards the sea to take up the space of the warm air. Thus wind blows from the land to the sea. It is called land breeze. What is land breeze? Wind blowing from the land to the sea is called land breeze. अब देखो सी ब्रीज डे टाइम में हुआ था. ओके, तो आपने देखा ना, डे टाइम में सी ब्रीज हो रहा है और एट नाइट इट इज लैंड ब्रीज. विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. ओके, ड्यूरिंग द नाइट lands cool down much faster than the sea, so the air above the land is warmer than the air above during the night the land cooled much faster than the sea water. Okay, so the air above the sea is warmer than the air above the land, so the warm air rises up and cool air from the land blows toward the sea to take the place of warm air. Thus the wind blows from the sea to the land. This is called land breeze. अब हिंदी में समझिए, ये लैंड है. अब देखिए ये नाइट, दिस इज लैंड है और ये है सपोज सी है. ओके, अब नाइट में, रात में क्या होता है? लैंड की जो एयर है, सी की जो एयर है और लैंड की एयर सी की एयर की अपेक्षा जल्दी कूल हो जाती है. क्यों कूल होती है? क्योंकि सी में तो पानी है. ठीक है, अब उसको कूल होने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है, पानी को कूल होने में टाइम लगता है. नाइट में लैंड जो है जल्दी कूल हो जाता है सी की अपेक्षा. तो क्या होता है? सी की जो वार्म एयर है वो ऊपर उठने लगती है. ठीक है, और लैंड से जो कोल्ड एयर है, अब देखिए वार्म एयर इसी तरीके से ऊपर उठेगी
और देखिए क्लाउड बनेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रेशर के द्वारा कोल्ड एयर नीचे आएगी। समझ में आया? तो क्या होता है, सी से लैंड की ओर विंड ब्लो करता है, क्योंकि ये है क्या है, वार्म एयर है। विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ओके, दिस इज लैंड ब्रीज। ये कौन सी विंड ब्लो करती है, सरफेस विंड, जो सतह पे हवा होती है वो ब्लो करती है, ठीक है। सरफेस मीन सरफेस, सतह पे, यहाँ इसकी सतह पे जो हवा है वो सी से लैंड की ओर ब्लो करती है, तो हम इसे बोलते हैं लैंड ब्रीज। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, और ये नाइट में ज्यादातर लैंड ब्रीज, नाइट में ही होता है लैंड ब्रीज। ओके, नाउ this much for today's class. In next class we will discuss about water. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children. Now next topic is land breeze. During the night the land cools much faster than the sea water, so the air above the sea is warmer than the air above the land. The warm air being light rises up and the cool air from the land blows towards the sea to take up the space of the warm air. Thus wind blows from the land to the sea. It is called land breeze. During the night the land cools much faster than the sea. So the air above the sea, because of being hot, rises up and cool air from the land moves to the sea, start blowing to the sea. Okay, so the wind blows from the land to the sea. This is called land breeze. Okay, रात के समय में क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडा होता है सी की अपेक्षा, तो क्या होता है, सी के ऊपर में वार्म एयर रहती है और लैंड में कूल एयर होती है, तो सी की वार्म एयर ऊपर उठती है लैंड की तरफ, ठीक है, और लैंड में जो कोल्ड एयर होती है वो सी की तरफ जाती है उसकी जगह लेने के लिए। ये आपने पढ़ा, पीछे मैंने बताया था पिछले क्लास, इसमें इसी क्लास में, कि वार्म एयर राइज करती है और कोल्ड एयर राइज उसकी जगह लेने के लिए जाती है। तो क्या है, सी से वार्म एयर राइज करती है। सपोज दिस इज लैंड और ये इसे ओशियन, सपोज दिस इज ओशियन। अब यहां से वार्म एयर जो है ये राइज करेगी, वार्म एयर राइज करेगी, यहाँ पे क्लाउड फॉर्म होगा, फिर यहां से, अब यहाँ पे देखिए कोल्ड एयर, यहाँ पे वो होगा, अब यहाँ पे क्या है, ये सरफेस एयर ब्लो करती है, वार्म एयर ब्लो करेगी ऊपर की ओर, फिर यहां पर से सरफेस एयर ब्लो कर रही है, ठीक है। सरफेस एयर मीन सतह पे जो एयर है वो ब्लो कर रही है, कहां की तरफ, वाटर टू लैंड, ठीक है, ऊपर उठ के वाटर से लेके लैंड की तरफ सरफेस एयर ब्लो करेगी, यहां पे एयर कूल हो जाती है, कूल हो जाती है, फिर वो नीचे की ओर सिंक करती है, हाँ सिंक करती है, कूलर एयर स्प्रेड, ये फैल जाती है, कूल एयर स्प्रेड करके फैल जाती है लैंड में। फिर क्या होता है, लैंड से हाई प्रेशर की वजह से फिर से वापस कोल्ड एयर सी में चली जाती है। समझ में आया? ये कूल एयर है, वापस सी की ओर या ओशियन की ओर, जो भी वाटर बॉडी है उसकी ओर फ्लो करती है। इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वाटर। All living things need water to live. About 71% of the earth's surface is covered with water. It is found in seas, oceans, ponds, rivers, lakes, wells and so on. Out of all the water that is available in nature, very little is usable. Water changes its form on heating and cooling. All living things need water to live. About 70% of the water Earth's surface is covered with water. It is found in seas, oceans, lakes, rivers, etc.
Out of all the water that is available, very little is usable. Okay, and water changes its form on boiling and cooling. हम सभी जीव जंतुओं को, हम सभी लिविंग बीइंग्स को वाटर की जरूरत होती है. हमारा अर्थ पूरा 71% ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर से ढका हुआ है. बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, जैसे सी है, ओशियंस है, रिवर्स है, ये सब वाटर बॉडीज हैं. ठीक है, जितना वाटर उसमें से बहुत कम ही यूज हो पाता है. और वाटर अपना चेंज करता है फॉर्म, मतलब अपना फॉर्म चेंज करता है कि कब करता है, हीटिंग और कूलिंग में. ओके, अब देखिए कैसे चेंज करता है. फर्स्ट टॉपिक इज इवापोरेशन. The water in the lakes, seas, oceans, ponds and rivers changes into water vapor due to the heat of the sun. The process of water changing into water vapor is called evaporation. Water evaporates faster on a windy day. वाटर जो लेक, ओशियंस, पॉन्ड्स में होता है वो सन की हीट से गर्म होता है. गर्म होकर के वो इवापोरेट होता है, मीन्स भाप बनता है. ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जब पानी गर्म करते हैं तो फिर उसमें से भाप निकलती. इसी तरह से इनका पानी भी, इन वाटर बॉडीज का पानी भी गर्म होता है सूर्य की गर्मी से, और क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है. तो इवापोरेशन क्या है, वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड वाटर इवापोरेशन. वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. दिस इज इवापोरेशन. ओके, इसी तरह से कपड़े भी हमारे सूखते हैं. वाटर जो हमारे कपड़ों का होता है वो इवापोरेट होकर के उड़ जाता है. और जब हवा ज्यादा होती है तो जल्दी से इवापोरेशन का जो रेट है वो फास्ट होता है, मतलब तेज होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन. When water vapor comes in contact with a cooler surface, it changes into liquid. The process of water vapor changing into water on cooling is called condensation. Evaporation and condensation together complete the water cycle. When water vapor comes in contact with a cool surface, it changes into liquid. Now the process of water vapor changing into water on cooling is called condensation. Evaporation and condensation together complete the water cycle. जब वाटर वेपर कूल सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है. तो कंडेंसेशन क्या है, वाटर वेपर व्हेन इट कूल्स इट चेंज इनटू वाटर. ओके, तो वाटर वेपर चेंजिंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इवापोरेशन और कंडेंसेशन टुगेदर वाटर साइकिल को कंप्लीट करते हैं. ओके, आपके पेज नंबर 99 में वाटर साइकिल दी हुई है. ये आप देखो कैसे कंप्लीट करते हैं. देखिए यहाँ पे सी लेवल है, सपोज ये सी है और ये लैंड है. सन की हीट से सी वाटर जो है वो ऊपर उठता है. ठीक है, सी वाटर ऊपर उठता है. ऊपर उठ करके ये बनता है क्लाउड. ठीक है, और क्लाउड में वाटर कूल हो जाता है जब, तो वो क्या बन जाते हैं, वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं. वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं. ठीक है, फिर ये वाटर ड्रॉप्स कंडेंसेशन. और देखिए ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है इवापोरेशन हो रहा है. इवापोरेशन हो रहा है, सी वाटर गर्म होकर के इवापोरेट हो रहा है और यहाँ पे क्लाउड बन रहा है. क्लाउड में कंडेंसेशन होता है, वाटर कंडेंस करता है तो बन जाता है वाटर ड्रॉप्स. ओके, जब ये हैवी हो जाते हैं तो वाटर ड्रॉप्स लैंड की ओर प्रेसिपिटेट करते हैं, मतलब ये होता है प्रेसिपिटेशन. फिर आपका प्रेसिपिटेशन होता है. ओके, अब देखिए प्रेसिपिटेशन में, इसमें देखिए सरफेस वाटर, फिर से सरफेस वाटर होता है और ग्राउंड वाटर. इन सब में पानी, बारिश होती है तो यहाँ पे नीचे की ओर चला जाता है. ठीक है, फिर यहाँ से सरफेस और ये पानी देखिए, वाटर देखिए,
वहां से प्रेसिपिटेशन होकर के वापस लैंड में आया, लैंड से सरफेस में आया, सरफेस से ग्राउंड वाटर, नीचे जो वेल हम लोग डिग करते हैं वो, फिर ग्राउंड वाटर से ये वाटर वापस सी में मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से ये वाटर साइकिल चलती रहती है चारों तरफ। ओके, और आपको अपनी कॉपी में वाटर साइकिल का डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ओके, नाउ दिस मच फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about impurities in drinking water. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.